Such a great example for Vivo Pro Kabaddi League. We have taken best practices. We have learned the lessons they offer to the world of sport. And just like them, through Pro Kabaddi Season 8, we look forward to setting the example for sport in India, uh, particularly indoor sport and this unique contact team sport, which Kabaddi is. Uh, of course, as you pointed out, uh, PKL Season 8 will be conducted at a single venue without spectators. It's a very deliberated choice. And that brings us directly to the question of fans. I think they are going to be part of this continuing success story of a world-class league, of a world-class sport from India. There's no doubt of it. This time we will make use of all that is possible in technology and innovation uh, to bring the fans, to keep the fans engaged with the matches, with the league. And of course, again, our media rights partner, Star Sports, will bring all its experience and capacity to this purpose. What we, of course, there's one area where the league has worked. We have not reduced the number of matches. We are the league with the highest number of matches for any front-ranking sports league in India. We have maintained that number, and what we have shortened the duration of the league a bit. It will be 74 days starting tomorrow, 22nd December. The finals will be on 26 February 2022. It means we expect Pro Kabaddi to offer even more action-packed engagement to all our fans, and we really look forward to being with them for the coming 11 weeks. Thank you so much. Well, thank you so much, sir. तभी तो वीओ प्रो कबड्डी सीजन 8 में कहते हैं जो भिड़ेगा वही बढ़ेगा. हमने एक्शन कम नहीं किया, भले ही दिन थोड़े कम क्यों ना हो गए हो. फिलहाल we have Mr. Yogendra Sri Ramula, Director Brand Strategy, Vivo India, and he will be sharing a few words on the commencement of the season. Yeah. Thank you very much, first of all. I can feel the excitement in the air to start this action-packed season of the Vivo Pro Kabaddi League. Our association with Pro Kabaddi League is really long, and we are happy to be here as the sponsors for the 8th season as well. Vivo, at the heart of everything it does, has its purpose, and that purpose is to create a world of joy for our users. And Kabaddi as a sport in India has been gaining leaps and bounds, the fan base in the youth especially, and we are really happy to be supporting this sport and bringing joy to millions of our users across the country. Like we heard that there might not be fans at the stadium, but I'm sure that there are many fans and Vivo users across the country, and we want to make it exciting for them as well. So we have quite a few exciting activities through which you have opportunities to win our splendid and fabulous phones as well. I am really charged up to watch this action-packed season, but I would first want to welcome all the youngsters who are making their debuts this season and wish all the best to all the teams as well. Let the games begin. Well, thank you so much, sir, for your wishes. और अब वक्त आ चुका है हमारे 12 कैप्टन्स से सवाल पूछने का. कुछ पहली बार कैप्टन बने हैं, कुछ नई टीम के कैप्टन बने हैं. तो शुरुआत मैं आपसे करता हूं. सुरजीत सिंह, कैप्टन ऑफ तमिल थलाइवास, आप अपने कोच उदय कुमार साहब की गाइडेंस में एक नई टीम के कैप्टन बने हैं. तो सीजन 8 के लिए क्या प्लान है आपका? देखो, कोच साहब ने अच्छे से तैयारी करवाई है. हमारे यंग प्लेयर हैं, तो हम यही सोच रहे हैं मैच जैसे हमारे मैच चलेंगे उस हिसाब से अपनी थोड़ी तैयारी करेंगे. हाँ, और यही प्लानिंग है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मैच जीते. कोच साहब के साथ फुल आपके ट्रेनिंग सेशंस काफ़ी अच्छे चले हैं. हाँ, अच्छे चले. चल, थैंक यू सो मच सुरजीत. और अगला सवाल मेरा हाई फ्लायर पवन सहरावत से है. 2 सीजन से लगातार नंबर 1 रेडर बने हुए हैं आप, और इस सीजन आपकी टीम पेपर्स पे काफ़ी ज़्यादा बैलेंस लग रही है. रेडिंग में भी बहुत सपोर्ट है, डिफेंस आपका वही ओरिजिनल कोर डिफेंडर्स आप लेकर आ गए हैं. तो एक सक्सेसफुल सीजन के लिए इस बार क्या तैयारी है आपकी?
काफ़ी हमने क्या नाम है वर्कआउट पहले किया है कि सीज़न की तैयारी के लिए जो गलतियां लास्ट सीज़न रही थी उन गलतियों को हम नहीं दोहराएंगे। और ऑन पेपर हमारी टीम अच्छी है, तो हमने अभी काम किया है, रेडिंग पे काम किया है, डिफेंस पे काम किया है, नई स्किल ऐड की हैं रेडरों ने, डिफेंसरों ने अपनी टेक्निक नई नई ऐड की हैं। तो ये सीज़न के लिए यही तैयारी है कि जो पिछले सीज़न गलतियाँ की वो गलतियाँ नहीं दोहराएंगे। वेल दैट्स द कैप्टन ऑफ बेंगलुरु बुल्स पवन सहरावत। और अब बढ़ते हैं दबंग दिल्ली केसी के कैप्टन जोगिंदर नरवाल साहब के पास। सर, आपके हिसाब से दबंग दिल्ली केसी की इस टीम की नई स्ट्रैटेजी क्या होगी? क्योंकि पिछले सीजन जहां आपके पास युवा खिलाड़ी ज्यादा थे, इस बार आपके पास एक्सपीरियंस प्लेयर्स बहुत सारे हैं, तो प्लेइंग 7 की क्या स्ट्रैटेजी होगी? देखिए, पिछली बार हमारे पास नए लड़के बहुत ज़्यादा थे। अब की बार कुछ हमारे पास एक्सपीरियंस प्लेयर आए हैं, जैसे मंजीत छिल्लर आया है, जीवा कुमार आया है, संदीप नरवाल आया है, अजय ठाकुर आया है। तो अभी प्लान तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन वो तो मैट पे ही बताएंगे आपको। लेकिन काफ़ी तैयारियां की हैं हमारी टीम ने। 1.5 महीने का कैंप चंडीगढ़ में लगाया था और 15 दिन हम यहाँ कंटिन्यू प्रैक्टिस पे हैं। तो वो तो कोच साहब भी जो बताएंगे उसको फॉलो करेंगे, और वो तो हम मैट पे ही बताएंगे अब। नहीं सर, मैंने प्लान इसलिए पूछा था, मुझे स्पेशली मनिंदर ने बोला था यार फाइनल्स बहुत टफ था, थोड़ा प्लान वैन पूछ लो इस बार क्या है नया। खैर थैंक यू सो मच भाई साहब। पिछला फाइनल बहुत अच्छा हुआ था, और अब की बार भी जो इतने दिन के बाद कबड्डी स्टार्ट हुई है, अनुपम सर ने इतना प्रयास करके इस कबड्डी को यहाँ तक ले गए हैं और ये करवाई है। जैसे गांव के लोग तो पूछते रहते थे 2 साल से, भाई कबड्डी कब स्टार्ट होगी, कब स्टार्ट होगी। तो ये बहुत बड़ी लीग है हमारे लिए और इस हिंदुस्तान के लिए। तो ये अब की बार भी देखने को बहुत अच्छे मैच मिलेंगे, और सभी प्लेयरों को आपको दमखम देखने मैच पे ही मिलेगा। थैंक यू सो मच। दैट्स जोगिंदर नरवाल, कैप्टन ऑफ दबंग दिल्ली केसी। आगे बढ़ते हैं गुजरात जायंट्स के कप्तान द यंग सुनील कुमार। सुनील, गुजरात जायंट्स की बात करें तो आपके कोच साहब तो वैसे ही बहुत स्ट्रांग हैं, और उनकी ट्रेनिंग के वीडियोस भी हमने देखे हैं। आप लोगों की बहुत इंटेंस ट्रेनिंग होती है, तो इस बार ट्रेनिंग के दौरान क्या नई स्ट्रेंथ्स या क्या नई वीकनेस आप लोगों को पता चली अपनी टीम के बारे में? सबसे पहले तो मैं विवो प्रो कबड्डी का धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने हमारे को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, हमारे खेल को इतनी ऊपर उठाया। हमारी टीम ने 2 महीने पहले कैंप लगाया था यहीं बेंगलुरु में। हमने सबसे पहले अपनी फिटनेस पर ध्यान दिया, उसके बाद हमने अपनी स्किल्स पर, मैट प्रैक्टिस सभी पर जाते जाते आराम आराम से काम करते गए। और हमारे पास स्ट्रेंथ में रविंद्र पहल है, प्रवेश बैसवाल है, तो बहुत सारे प्लेयर हैं जो हमारे स्ट्रेंथ हमारी टीम की। वीकनेस को हम अपनी टीम की वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदल रहे हैं। जब वो स्ट्रेंथ हमारी एक साथ हो जाएगी तो इस कप को हम इस बार ज़रूर उठाएंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच सुनील, कैप्टन ऑफ गुजरात जायंट्स। आगे बढ़ते हैं नितेश कुमार, इकलौते ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने एक सीजन में 100 टैकल पॉइंट्स अपने नाम किए थे। नितेश, यूपी योद्धा के कप्तान हैं आप, और एक नाम, बहुत बड़ा नाम आया है आपकी टीम में, प्रदीप नरवाल। इस नाम का टीम से जुड़ने पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, और इस बार इस सीजन टीम से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी? देखो, प्रदीप नरवाल हमारी टीम में आया है तो हमें कॉन्फिडेंस मिला है काफ़ी, क्योंकि वो कंटिन्यू अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो हमारी टीम काफ़ी बैलेंस हो गई है। डिफेंस हमारा पहले अच्छा कर रहा था, रेडर अब की बार अच्छा आ गया है, तो अब की बार काफ़ी अच्छा है। प्रदीप नरवाल के आने से खुशी है? हाँ बिल्कुल, वो सीनियर प्लेयर हैं और यंग प्लेयर भी हमारे पास अच्छे हैं, तो टीम हमारी बैलेंस है। वेल, थैंक यू सो मच नितेश, Thank you. कैप्टन ऑफ यूपी योद्धा। आगे बढ़ते, वन ऑफ द फिटेस्ट प्लेयर्स इन वीवो प्रो कबड्डी, दीपक हुडा। दीपक, एक नई टीम की कप्तानी कर रहे हैं आप, जयपुर पिंक पैंथर्स में पूरी टीम आपकी नई हो गई है करीब करीब। सो आपके प्लान क्या है इस सीजन के लिए, और कोई एक पर्टिकुलर टीम जिसे आप अपना सबसे बड़ा राइवल मानते हैं, यार इनके खिलाफ तो जीतना ही जीतना है? मतलब एक मुझे पता है यू मुंबा इनॉग्रल है, लेकिन उस वैसे कोई? देखो, नई टीम तो नहीं है, 9 खिलाड़ी हमारे लास्ट सीजन के हैं। टीम का बेस तो मेरे ख्याल से वही है। हाँ, कुछ काफ़ी एक्सपीरियंस खिलाड़ी हमारे पास आए हैं, जैसे धर्मराज सरलादन जैसे अच्छे खिलाड़ी आए हैं, तो उनका तो बेनिफिट ही बहुत ज़्यादा होने वाला है। और रही बात राइवलरी की, तो 11 टीमों से ही मैच खेलना होता है, और सभी स्ट्रांग होती हैं क्योंकि सबको परफॉर्मेंस देनी है। एक प्रोफेशनल लीग है, तो हमारे लिए तो सभी बराबर हैं। लेकिन कोई एक टीम जिससे कुछ खास लगाव हो आपको? मैं यहाँ किसी एक का नाम ले दूंगा, और वो बाकी 10 कहाँ जाएंगी उनके साथ भी तो मैच खेलना है। हाँ, फिर बाकी 10 टीम बोले अच्छा हमें हल्के में ले रहे हो, ये भी सही है। वेल, थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं, हरियाणा स्टीलर्स के कप्तान विकास कंडोला। विकास, आपकी टीम में यंग टैलेंट भी है,
और एक सरप्राइज एलिमेंट के साथ हर बार हरियाणा स्टीलर्स आती है क्योंकि कोई नया सितारा एकदम निखर के सामने आ जाता है। तो इस बार प्रैक्टिस सेशन के दौरान क्या ऐसा कोई नया सितारा आपको दिखा जो यार ये बहुत ही कमाल करने वाला है, एंड उसके अलावा आपके सीजन के प्लान्स क्या हैं वो भी बताइए। बिल्कुल, इस बार जो एनवाईपी के लड़के लिए हैं कोच साहब ने, मित्तू है, जयदीप है और मोहित है, तीनों काफ़ी अच्छे हैं। और एक जो कॉर्नर है यश, वो भी बहुत अच्छे हैं। चारों के चारों जो एनवाईपी के प्लेयर हमारे बहुत अच्छे हैं। और 1 अक्टूबर से कैंप स्टार्ट हुआ था तो कोच साहब ने उन्हीं गलतियों पे काम किया है जो हमारे से पिछले सीजन में गलतियां हुई थी। और डिफेंस हमारा पिछली बार थोड़ा लूज था, इस बार सुरेंद्र नाडा की वापसी हुई है टीम में तो डिफेंस में भी काफ़ी मजबूती हुई है। और मित्तू, मैं बोलूँगा मित्तू इस बार अलग से निकल के आएगा। चलिए, थैंक यू सो मच विकास। आगे बढ़ते हैं पुनेरी पल्टन के कप्तान नितिन तोमर। नितिन, आप एक बहुत ही सीनियर खिलाड़ी हैं, पुनेरी पल्टन के कप्तान जो कोच साहब हैं वो तो लेजेंड हैं ही, अनूप कुमार साहब, लेकिन इस सीजन में आपके पास एक और सितारा आया है, राहुल चौधरी। तो उनके टीम में आने से टीम का कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है? देखिए, राहुल चौधरी के आने से हमारी जो रेडिंग डिपार्टमेंट है वो काफ़ी मजबूत हुई है। और जैसे आपने बताया, अनूप कोच साहब अच्छे खिलाड़ी रहे हैं और अच्छे कप्तान भी रहे हैं और अब अच्छे कोच की भूमिका निभा रहे हैं, तो उनसे कुछ काफ़ी सीखने को मिला है। और हमारी टीम में यंग प्लेयर काफ़ी अच्छे हैं, विशाल भारद्वाज है, बलदेव है, बाला साहिब, संकेत, और रेडिंग डिपार्टमेंट में पंकज मोहिते है। तो हमारी एक बैलेंस टीम है, तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि अब की बार PKL 8 का खिताब अपने नाम करें। वेल, बहुत बहुत बधाई हो आपकी बैलेंस टीम के लिए। वैसे मैंने भी पढ़ा था, बहुत ही कमाल के हिमाचल कॉर्नर डिफेंडर्स हैं आपके, दोनों एक साथ खेल भी चुके हैं बहुत पहले हिमाचल में एक साथ, विशाल एंड बलदेव। तो आपको बहुत बहुत बधाई हो टीम के लिए। अगले प्लेयर की तरफ बढ़ते हैं, द कैप्टन ऑफ यू मुंबा, फजल अतरचली। सो फजल, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू दैट न्यू टीम, सम ओल्ड प्लेयर्स आल्सो, हाउ बैलेंस्ड इज द स्क्वाड? व्हाट डू यू थिंक अबाउट द न्यू यू मुंबा? It is every season for me is like new team, season 6, season 7, and it is like a bit for me. And we have some experienced player like we have Harinder from last season, we have Abhishek, and also Ajit. He played last season in Tamil Nadu very well. And my idea is the name not playing. This is we have a youngster in teams. And it is important that how we are the practice and how we should play. And I hope and I know we have a good team with new team, and I think we will have a good season. Well, thank you so much. That's the Sultan Fazal Atrachali. आगे बढ़ते हैं, डिफेंडिंग चैंपियंस बंगाल वॉरियर्स के कप्तान, पंजाब पावर हाउस, मनिंदर सिंह। पाजी, सबसे पहले तो डिफेंडिंग चैंपियंस है आप, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कंधों पर कि यार वो चैंपियनशिप वापस लानी है, क्योंकि पटना पायरेट्स के अलावा ऐसी कोई टीम नहीं जो लगातार जीती है। तो इस बार नई टीम के साथ क्या नया प्लान है? किस प्लान के साथ सीजन 8 में आप एंट्री कर रहे हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है इस बार, है ना, कि पिछले साल जीते थे तो इस बार भी ट्राई करेंगे जीतने की। बाकी ये है कि हमारी जो पिछले साल टीम थी वो उसमें से बहुत ज़्यादा प्लेयर है हमारे पास, तो बाकी नए प्लेयर जो यंग लड़के हैं वो भी बढ़िया है। तो बाकी कोच साहब के साथ जैसे प्लानिंग चल रही है अभी, तो मैच दर मैच करेंगे सारी प्लानिंग अभी। थैंक यू सो मच मनिंदर। थोड़ा कम बोलते हैं लेकिन मैट पर बहुत ज्यादा बोलते हैं अपने एक्शन से। दैट्स मनिंदर सिंह, द कैप्टन ऑफ बंगाल वॉरियर्स। आगे बढ़ते हैं, तेलुगु टाइटंस के नए कप्तान रोहित कुमार। रोहित, नई टीम के आप कैप्टन हैं इस सीजन, और आपके पास सिद्धार्थ बाहुबली देसाई भी हैं आपकी टीम में, जो कि इज वन ऑफ द स्टार रेडर्स ऑफ वीवो प्रो कबड्डी। तो क्या इस सीजन हम एक सुपर हिट रेडिंग डुओ देख सकते हैं? क्योंकि क्या रोहित कुमार ने अपनी प्रैक्टिस सेशंस में वापस वो फॉर्म वापस आ गया है जिसके लिए आप पर्सनली, मेरी आपसे बात भी हुई थी, आप कहते हैं बहुत अच्छी, मैंने आपके प्रोफाइल्स में देखा है, आपकी बहुत कमाल की ट्रेनिंग चल रही है। तो इस सीज़न क्या तैयारी है? और मैं आपसे भी वो सवाल पूछना चाहूँगा कि ऐसी कोई टीम जिससे कुछ खास, या इनके खिलाफ ज़रूर मुझे करना ही करना है। नहीं कुणाल भाई, ऐसी कोई मेरी दुश्मनी है नहीं किसी के साथ भी, सब अच्छे प्लेयर हैं, भाईचारा है सब में। और मेरा और देसाई का जो आप बोल रहे हो कि रेडर का जो डुओ है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। कोशिश की है कि पिछले सीज़न में जो मेरी परफॉर्मेंस थी उसको अप करने के लिए, तो अभी वो तो
वो मैच में पता चलेगा कि भाई कैसा रिजल्ट रहता है। बाकी तैयारी फुल करके आए हैं। वेल मैंने आपके ट्रेनिंग सेशन देखे हैं, आपने हैंड स्टैंड के साथ वॉक करना भी शुरू कर दिया है, काफ़ी हार्डकोर ट्रेनिंग कर रहे हैं, कल सारे ही कर रहे हैं हार्डकोर ट्रेनिंग। आखिरकार चलते हैं प्रशांत कुमार राय, कैप्टन ऑफ 3 टाइम चैंपियंस पटना पायरेट्स। सबसे पहले प्रशांत भाई बहुत बहुत मुबारकबाद, पहली बार कप्तानी कर रहे हैं आप। Thank you. तो पटना पायरेट्स एक नाम आता है 3 टाइम चैंपियंस, वैसे ही दिमाग में आ जाते हैं यार 3 बार के चैंपियंस। तो इस बार चैंपियन बनने के लिए क्या तैयारी है टीम की? सर हमारा कैंप तो 12 अक्टूबर में बैंगलोर में स्टार्ट हुआ। अराउंड 60-65 डेज़ का कैंप बढ़िया चला। पहले 3-4 दिन ऐसे हर इंडिविजुअल प्लेयर का एनालिसिस किया, उसका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, क्या करके। उसके बाद उसके हिसाब से हमारा स्ट्रेंथनिंग एसेंस है और मैट में भी काम किया है। इस तरह बढ़िया टीम है, यंग एंड एनर्जेटिक है, एक्सपीरियंस भी है। फरवरी 26 को एक टीम तो पटना ही फाइनल खेलेगा। That's the confidence भाई, ये कॉन्फिडेंस बहुत ही कमाल का है और इस गेम में कॉन्फिडेंस होना जरूरी है क्योंकि अगर भिड़ोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। जी हाँ, चलिए हमने सवाल पूछ लिए लेकिन अब वक्त हो चुका है हमारे मीडिया फ्रेंड्स के सवाल का। तो मैं हमारे सारे मीडिया फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज चैट बॉक्स में अपने सवाल टाइप करें एंड रैंडमली हमारी बैक एंड टीम उनमें से कुछ सवालों को उठाएगी एंड देन आई विल आस्क दोस क्वेश्चंस टू दी 12 कैप्टन्स। और आप प्लीज, आप जिनसे भी सवाल पूछना चाहते हैं आप उनका नाम जरूर चैट बॉक्स में लिखें कि आपका सवाल उनके लिए है। तो आइए एक एक करके हम सवाल लेते हैं। ओके, सो सबसे पहला सवाल हमारे पास आया है फ्रॉम शाहिद जज साहब का है फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस एंड इनका क्वेश्चन है अनुपम गोस्वामी सर के लिए। Can you let us know about the process of building bio bubble for PKL and what sort of research went into building a COVID-free zone for the league? Sure, Shahid. As I said in the earlier question which I was asked, we have learned from all the leagues who kept themselves going in face of the global pandemic. I think it's a great effort, and I think there are very relevant examples for us to follow, very relevant best practices. But जो सबसे बड़ी चीज़ थी, ये एक not only it's a contact sport, it's a team contact sport. So we have taken the route to having a very comprehensive bubble around for all teams and the competition to be at a single location. It is a very stringent, stern disciplinary process, and I would like to thank all the 12 teams present to the way they have adapted to it. It is definitely a first time for any indoor or any contact sport in India. At the heart of it is very, very, very stringent testing and very stringent discipline. And these are very early days for the league yet. But we have seen very, very strong participation and compliance by the teams. In fact, one new thing which came up was many of the players have talked very positively of the isolation that they've served. And it was a first time experience for them. So, of course, this is only the start, and we have to go right up till 26 February next year, and I look to such continued participation and compliance from all the 12 teams. थैंक यू सो मच सर। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ और अगला सवाल हमारे पास आया है फ्रॉम मिस्टर निखिल बापट फ्रॉम पीटीआई और इनका सवाल है प्रशांत कुमार राय जो कि पटना पायरेट्स के कप्तान हैं। भाई साहब, पटना के लाल प्रदीप नरवाल, ये नाम 5 सीजन तक सुना है, 5 सीजन तक वो पटना पायरेट्स के स्टार रेडर रहे हैं। अब प्रदीप नरवाल को कितना मिस करेगी टीम पटना पायरेट्स? सही है सर, प्रदीप नरवाल का परफॉर्मेंस, उसका रिकॉर्ड ही बात करेगा। हमारे दिस टाइम सीज़न 8 एक अलग तरीके से हमारा पटना पायरेट्स आ रहा है, मतलब एक यंग टीम है, एक्सपीरियंस भी है। इसके वजह से वो प्रदीप नरवाल का एक क्या कमी
महसूस नहीं होगा। दिस टाइम पक्का सीजन 8 पटना पायरेट्स के नाम पे होगा, विद टीम यूनिटी के साथ जाएंगे हम लोग। इसी कॉन्फिडेंस के साथ पटना पायरेट्स इस लीग में एंट्री करेगी। खैर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला सवाल है संजय घरपुरे जी ने पूछा है फ्रॉम महाराष्ट्र टाइम्स एंड इनका सवाल है फजल अत्रचली के लिए, कैप्टन ऑफ यू मुंबा। फजल, you know, after 20 months you will be playing and your first match is against Bengaluru Bulls. What are your plans, your strategies, because they have one of the lead raiders, one of the best raiders from last 2 seasons, Pawan Sehrawat, and many others. So what is your strategy? I know all fans for waiting for this time because two years we didn't have a Pro Kabaddi, and our strategy is first, I can't tell because tomorrow is match and we show in the match. But I know the Bangalore is very good team because they have a Pawan, and also this season they have a balanced team, and from defense they playing about 2-3 years together, and from Raider this time Pawan have a 2-3 Raider more in Bangalore, so they are very good team. But I think this match will be very tight match and very close match, and it will be for our fans very interesting match. Well, thank you so much फजल, एंड ऑब्वियसली ये मुकाबला बहुत ही बेहतरीन हुआ क्योंकि सीजन 7 के बेस्ट डिफेंडर रह चुके हैं फजल अत्रचली, सीजन 7 के बेस्ट रेडर हैं पवन सहरावत, और जब बेस्ट रेडर और बेस्ट डिफेंडर के बीच में जंग होगी तो वो घमासान होगी। खैर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और ये सवाल आया है श्याम वासुदेवन जी का फ्रॉम स्पोर्ट्स स्टार, और इनका सवाल है जोगिंदर नरवाल साहब के लिए, कैप्टन ऑफ दबंग दिल्ली। सर, पिछले सीजन फाइनल्स तक पहुंचे और जीत नहीं पाए, अब इस साल क्या प्लान है? बिकॉज बैलेंस टीम है, ऑब्वियसली यंग टैलेंट है जैसे कि नवीन कुमार, लेकिन साथ में एक्सपीरियंस भी इस बार भरपूर है, मंजीत छिल्लर हैं, अजय ठाकुर हैं, तो इस बार नई टीम की क्या स्ट्रैटेजी है? देखिए, पिछली बार जैसे नवीन रेडर था और विजय था, अब की बार हमारे पास जैसे अजय ठाकुर आया है, एक एक्सपीरियंस प्लेयर है, काफ़ी बेहतरीन प्लेयर है कबड्डी का, और प्रो कबड्डी में भी काफ़ी इतिहास है उसके, तो अब की बार हमारे को ज़्यादा हमारे रेडर को भी सपोर्ट रहेगी, तो अजय ठाकुर आया तो ये प्लस पॉइंट हमारे लिए यही है। अब की बार टीम लीग जैसे जैसे स्टार्ट होगी अच्छा खेलेगी, देखते हैं फाइनल तक जाएंगे तो फिर अच्छा खेलेंगे, इस बार ट्रॉफी उठाएंगे। वेल, बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। मैं आप जब बार बार बोल रहे थे ना, मेरे दिमाग में ये आ रहा था अब की बार ट्रॉफी हम ही लेंगे यार, ऐसा कुछ चल रहा है। नहीं, प्रयास करेंगे। देखो सभी टीमें अच्छी हैं, सभी अच्छा खेलने आए हैं, सभी मेहनत करके आए हैं, पर सभी प्रयास करेंगे, उसमें एक हम भी अपना प्रयास करेंगे, फाइनल तक जाएं और ट्रॉफी उठाएं। बिल्कुल, भिड़ना जरूरी है, तभी तो कहते हैं जो भिड़ेगा वही बढ़ेगा। खैर अगला सवाल हमारे पास आया है श्रीनिवासलू जी का फ्रॉम एनडू, एंड इनका क्वेश्चन है रोहित कुमार, कैप्टन ऑफ तेलुगु टाइटंस, उनके लिए। उनका कहना है रोहित, दैट तेलुगु टाइटंस आज तक एक भी बार ट्रॉफी नहीं जीती है, इस बार आप उनके कप्तान हैं, आप तो 2 बार ट्रॉफी उठा भी चुके हैं, तो इस बार क्या प्रिपरेशंस होगी, नई तैयारी होगी ट्रॉफी के लिए? कुणाल, तैयारी काफ़ी अच्छी की है और मेरे लिए भी नई टीम है, पर कभी एहसास नहीं हुआ ऐसा कि कुछ नया लगा हो मेरे को, क्योंकि आते ही मैनेजमेंट और कोच, मतलब उनका तरीका और उनका जो उन्होंने सहूलियत जो दी और जो टीम को कैसे मैनेज करना है, वो सब यहाँ पे आके मैंने काफ़ी मतलब बढ़िया वो देखने को मिला। और तैयारी बस यही है कि अपना 100% देंगे, और जो परफॉर्मेंस मेरी थी पिछले जो सीजनों में, तो उस पर काफ़ी काम किया है कि परफॉर्मेंस अपनी अप करके और अपनी टीम को सहायता करूं, तो वही रोल रहेगा मेरा जो पिछले सीजनों में रहता आया कि अपनी टीम को आगे लेके जाने का। थैंक यू सो मच रोहित। एंड अब एक और सवाल लेते हैं, और जो हमारा अगला सवाल है इट्स फ्रॉम मिस्टर विप्लव कुमार, दैनिक जागरण से हैं, और ये सवाल पूछ रहे हैं नितेश कुमार, कैप्टन ऑफ यूपी योद्धा। नितेश, आपके हिसाब से प्रदीप नरवाल की एंट्री टीम में क्या महत्व रखती है, और यूपी योद्धा इस बार किस तरह से उनके स्किल्स को यूज करने वाले, क्योंकि ऑक्शंस में आपने अपना सारा बैंक बैलेंस प्रदीप नरवाल के नाम कर दिया था,
तो इस बार क्या महत्व है उनका टीम में और उनकी स्किल्स को, जैसा कि उन्होंने पूछा, किस तरह से यूज करेंगे? देखो प्रदीप नरवाल एक बहुत अच्छा रेडर है और स्टार रेडर है, तो उसके आने से हमारी टीम में काफ़ी कॉन्फिडेंस बढ़ा है, हमारा डिफेंस का भी, क्योंकि हमारे पास हमको पता है कि एक अच्छा रेडर है। तो उस रही स्किल की बात, तो अब की बार उसने 1-2 स्किल और नई सीखी हैं, तो हम मैट पे दिखाएंगे बिल्कुल। कोई अच्छा, प्रदीप नरवाल की एक स्किल की तो खैर दुनिया फैन है, डुबकी वो जो लगाते हैं, उनसे बेहतर डुबकी कोई और नहीं लगाता। इसके अलावा कोई नई स्किल है जो इस बार प्रदीप नरवाल लेकर आएंगे? हाँ जी बिल्कुल, नई सीखी है उसने अभी कैंप में, बिल्कुल नहीं अभी बता सकते। मैंने सोचा बाकियों के लिए पूछ लूं, बड़ी टेंशन होती है प्रदीप नरवाल अभी क्या नया करेंगे, सबसे बड़ा सवाल यही होता है। खैर, थैंक यू सो मच फॉर ऑल दी मीडिया पीपल जिन्होंने अपने अपने सवाल पूछे, एंड वंस अगेन आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का हमारे साथ वक्त गुजारने के लिए। एंड लेट द सुपर हिट पंगा बिगिन, बिकॉज जाते जाते मैं यही कहना चाहूंगा, वीवो प्रो कबड्डी सीजन 8 22 तारीख से एक्शन शुरू होगा। याद रखना ये डेट, शाम 7:30 बजे लाइव ऑन स्टार स्पोर्ट्स एंड डिज्नी प्लस हॉटस्टार। होना ना लेट, 2 साल बाद कर रहे हैं वापसी, बिलीव मी इट्स गोइंग टू बी ग्रेट। दिस इज कुणाल सलूजा साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच।